ان لوگوں کے اندر ہیں جو اپنے نظریات اور اپنے افکار کا سودا نہیں کرتے، چاہے پارٹی جیتے چاہے پارٹی ہارے، مگر یہ لوگ پہاڑ کی جگہ اپنے جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آچاریہ پرمود کرشنن صاحب اب آپ کے سامنے ہوں گے، آپ ان کے خیالات سنیں۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 10-15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں۔ ہمارے درمیان میں اس وقت سونیا جی کے ترجمان میرے محترم جناب غلام نبی آزاد صاحب تشریف فرما ہیں، جو سونیا جی کا پیغام پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ۔ آواز بہت جا رہی ہے اور اپنے نظریات اور اپنے خیالات کا بعد میں اظہار فرمائیں گے۔ یہ وہ جو دوسرا حال ہے۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ جمعیت کے صدر، ہمارے سرپرست، اس ملک کے ذمہ دار شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، تمام علماء اکرام، وہ دھوپ بھی اچھی تھی اس چھاؤں گھنیری سے۔ میں توجہ چاہوں گا، اور یہاں غلام نبی آزاد صاحب تشریف لائے ہیں خاص طور سے، کہ وہ دھوپ بھی اچھی تھی اس چھاؤں گھنیری سے، وہ جسم جلاتی تھی یہ روح جلاتی ہے۔ وہ جسم جلاتی تھی یہ روح جلاتی ہے۔ میں جب گھر سے چلا تو مجھے ایک بی جے پی کے مہاتما کا فون آیا۔ میں بات کھل کر کرنے کا عادی ہو چکا ہوں، اس لیے میرا علاج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک بی جے پی کے مہاتما کا فون آیا کہ آپ کہاں ہیں آچاریہ پرمود جی؟ میں نے کہا میں ایک جلسے میں جا رہا ہوں دلی میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جمنا کنارے جو سنسکرتی مہوتسو ہو رہا اس میں جا رہے ہیں کیا؟ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ سنسکرتی کا اتسو منانے جا رہے ہیں اور میں شانتی کے ثبوت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے مولانا ارشد مدنی صاحب کو، جو ہمارے بزرگ ہیں۔ مبارکباد اس لیے کہ جس طرح جنگ آزادی کے وقت میں انہوں نے ہندوستان کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے کے اس آزادی کی جنگ کا آغاز کیا تھا، اسی طرح آج ہندوستان کو ایک رکھنے کی جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مبارک، اس لیے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں سلام کرتا ہوں جمعیت کے جھنڈے کو، تمام ان نوجوانوں کو، جمعیت کے تمام ساتھیوں کو، اور سلام کرتا ہوں بنا سر پہ ٹوپی لگائے تلک لگا کر سلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دیش کو ایک رکھنے کا جو کام کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے قابل ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک عجیب طرح کا ماحول اس دیش میں آج چل رہا ہے۔ کل پردھان منتری جی نے کہا کہ پوری دنیا ہمارا پریوار ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی پریوار کے ہیں، پر میں کہنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی، پوری دنیا کو اپنا پریوار بتاتے ہو،
पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, हमारी किसी से मुखालफत नहीं है। मुझसे पहले अभी जस्टिस साहब बोल रहे थे, वो कुछ ब्राह्मणों के लिए बोल रहे थे। मेरे दोस्तों, ब्राह्मण भी बुरा नहीं है, जात बुरा नहीं है, सिख, ईसाई, मुसलमान, ठाकुर, अगला पिछड़ा कोई बुरा नहीं है। बुरा अगर कोई है तो वो ख्याल है जो हमारे बीच में दीवारें खड़ी करता है। और आज इस मंच से ईश्वर को साक्षी रख के, क्योंकि यहां की आवाज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जाएगी, मैं कहना चाहता हूं कि दीवारें दिख नहीं रही है, खड़ी होना शुरू हो गई हैं। हजरत मौलाना अरशद नदवी साहब, इन खड़ी होती दीवारों को अभी गिराना होगा, रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जब सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसने नहीं सोचा था कि ये मुल्क केवल बंगालियों का रहेगा। जब शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, तो उसने सोचा नहीं था कि यह मुल्क केवल सिखों का होगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कंपटी पे गोली मारकर अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उसने सोचा नहीं होगा कि इस मुल्क पर केवल ब्राह्मणों का राज होना चाहिए। इसी तरह शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां से जो पूछा गया, फांसी से पहले पूछा गया कि कुछ ख्वाहिश है, चले जाओगे अब यहां से, कुछ हो तो बताओ, तो अशफाक ने कहा कि कुछ आरजू नहीं, अगर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मेरे दोस्तों, हम सरदार भगत सिंह के बलिदान को नमन करते हैं, सुभाष के बलिदान को नमन करते हैं, लेकिन अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम चंद्रशेखर आजाद, मेरे आशराम त्यागी के बलिदान को नमन करते हैं, लेकिन वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तमाशा क्या हो रहा फिर इस देश में? मौलाना साहब, मैं तवज्जो चाहूंगा। एक माफिया साधु गोरखपुर से कहता है, एक भंडनी बलात्कारी साधु उन्नाव से कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, मरकज की हुकूमत को मैसेज देना चाहता हूं, पिछले 2 साल से तुम्हारी हुकूमत है, चलो ठीक है बन गई, पिछले 2 सालों से तुम्हारी सरकार है, एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, और जो भेजने की बात करते थे खुद ही चले गए। खुद चले गए, और चले नहीं गए, बिना बुलाए चले गए, और बिना बुलाए नहीं, हजरत, बिना बताए चले गए। ये क्या तमाशा है? इस देश में हजरत, आप गवाह हैं जंग आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक, उस लड़ाई से लेकर आज तक गवाह हैं, क्योंकि आपने उसमें अहम भूमिका निभाई है। इस देश ने मेरे दोस्तों बड़ी आंधियां देखी हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, आपने बहुत दौर देखा है, या खुर्शीद साहब बैठे हैं, तमाम यहां उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हमारे सभी मुअज्जिन हजरात यहां तशरीफ फरमा है। बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, इस देश ने बड़ी आंधियां देखी हैं, बड़े तूफान देखे हैं, बड़े बवंडर देखे हैं। मेरे दोस्तों, जब बवंडर आता है तो कोई भी लखनदर बादशाह बन जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप नमाज अदा करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, आरती करता हूं, घड़ियाल बजाता हूं, इसमें दिक्कत क्या है? इधर मस्जिदें हैं, उधर है शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। आप हमारी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें आपके अकीदे का एहतराम करना पड़ेगा और करना चाहिए। हमारा धर्म, हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ
ये नहीं कहता कि किसी भी धर्म के मानने वाले आदमी का अपमान किया जाए, और इस्लाम के अंदर कहीं यह नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है किसी दूसरे धर्म के पेशवाओं की बेइज्जती ना करो। पता नहीं वो भी आपका नबी हो। जो इस्लाम ये सिखाता है, जो इस्लाम ये बताता है कि मोहब्बत, खिदमत, कुर्बत, इबादत ये इंसानियत की बातें हैं, उस इस्लाम को मानने वाला कोई मुसलमान आतंकवादी कैसे हो सकता है? लेकिन आज एक हवा चलाई जा रही है। मैं कह रहा हूं कोशिश हो रही है, और कोशिश नहीं साजिश हो रही है कि मुसलमान को आतंकवादी सिद्ध कर दो, मुसलमान को देश का गद्दार सिद्ध कर दो। मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, ललित मौसम के सीने पर गोली किसी मुसलमान ने नहीं मारी, बीरेंद्र सिंह की कार के पत्थर किसी मुसलमान ने नहीं उड़ाए, हितेश्वर शैकिया के खानदान को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। तो फिर जिन लोगों ने उनकी हत्याएं की, क्या उनकी कौम पूरी आतंकवादी कही जा सकती है? जिम्मेदारी से सवाल उठाया तो जब वो आतंकवादी पूरी कौम को नहीं कहा जा सकता है, ऐसे ही कोई सिर्फ वो आदमी जो नाम से, चेहरे से मुसलमान लगता हो और वो हाथ में के 47 लेकर के खून बहाता हो, माफ करना, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है साहब, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है साहब। अगर दहशतगर्दी, गुनाह, जुल्म और कट्टरता का नाम इस्लाम होता तो माफ करना, पूरी दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। और हजरत ये बात सच्ची है कि जो चीज सख्त होती है, फेनेटिक होती है, कठोर होती है, वो फैलती नहीं है, सिकुड़ती है। फैलता वो है जो फिराक दिल और दरिया दिल होता है। मैं बड़े अदब के साथ कुछ बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि मुख्तसर वक्त है। एक बात, आप कहते हो घर वापसी, अगर कोई गरीब मुसलमान का लड़का, बड़े गौर से और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं तमाम मीडिया के सामने, अगर एक गरीब मुसलमान का लड़का गरीब हिंदू की बेटी से मोहब्बत कर ले तो वो लव जिहाद, और इनके तमाम मुसलमान नेताओं के घरों में हिंदुओं की बेटियां हैं, ये लव संस्कार है क्या? ये लव संस्कार है क्या? कहते हैं घर वापसी। अरे अगर घर वापसी करानी है तो शाहनवाज भाई की तरह मैं स्वागत करूंगा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब की तरह हम स्वागत करने को तैयार है, पहले कराओ तो सही। क्या तमाशा हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि इस कौम को, इस मुल्क को बांटने की साजिश ना की जाए, और एक मैसेज जाना चाहिए। मेरी आवाज अगर आपके दिल तक जाए तो हाथ खड़े करके मुझे दुआ देना। आपकी तरफ से मैसेज मैं दे रहा हूं मरकज की हुकूमत को और सारे देश के तमाम सूबों की हुकूमत को भी, कि हमारा भी वतन है ये। मैं सदर महतरम इजाजत चाहूंगा तरन्नुम पढ़ने के लिए, कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंख कर देखो, हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंख कर देखो। तो ये थे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन चल रहा है, और जिस तरह से सभी धर्मों की एकता पर ये भाषण अभी आपने सुना, इस्लाम धर्म और सभी धर्म एक हैं, धर्मों को
जिस तरह से प्राथमिक स्तर देना चाहिए, इंसानियत वहां पर है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है। इस तरीके के ये भाषण आपने अभी सुने। उत्तर देखो मेरे दोस्तों, बीजेपी के महात्मा जब से ये सरकार बनी है उनका दिमाग ज्यादा खराब हो गया। अब मुझे डर लगने लगा, मैं जब यहाँ आया तो मैंने सोचा मैं मंच पे आऊं तो मुझे साक्षी महाराज ना समझ लिया जाए। इनका दिमाग खराब हो गया। एक मुझसे कहने लगे आप हमारे खिलाफ बड़े बोलते हो। मैंने कहा यार ये बताओ, जंग आजादी में कोई बीजेपी का नेता शहीद हुआ? गुलाम नबी साहब, हजरत बड़ी मजेदार बात है पर बड़ी गहरी बात है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, जंग आजादी में कोई बीजेपी का नेता शहीद हुआ? जितना सवाल दमदार है जवाब उससे ज्यादा दमदार था। बीजेपी के महात्मा बोले शहीद कहां से होते, बीजेपी पार्टी नहीं थी तब, ये थे ही नहीं और ये तब भी नहीं थे। और जब से देश आजाद हुआ है, एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करने से पहले कि देश की आजादी के बाद आज तक किसी आतंकवादी ने भाजपा के किसी नेता की शहादत नहीं की। आखिर ये मामला क्या है? ये मामला क्या है? जिन्होंने पूरे खानदान अपना इस देश पर कुर्बान कर दिया, उनसे देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जो गद्दारों के साथ खड़े थे वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट जारी करने की दुकान चला रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये देश ना इनका है ना उनका है, ये हम सब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, हम सब का देश है। हम आपकी और आप हमारी जिंदगी के अंदर इस कदर शामिल हैं कि अगर आप जाएंगे तो हम कंधा देंगे और हम जाएंगे तो आप कंधा देंगे। हमारी मिट्टी साझा है, हमारा आसमान साझा है, पानी साझा है, हवा साझा है, तो फिर हम अलग कैसे हो गए? मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक मोहब्बत का पैगाम जो हजरत ने यहां से दिया है, और मैं तो कहना चाहता हूं आपसे आज कि आप झंडा लेके चलिए, क़यादत आप करिए, हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर के कदम से कदम मिलाकर के आपके झंडे के नीचे चलने को तैयार है। चलिए, बचाइए इस मुल्क को, बचाइए। मैंने एक नज़्म लिखी थी पैगंबर इस्लाम के लिए, हुजूर की शान में कुछ लिखा, वो नात बन गई। 4 लाइन पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। ये कौमियत जलती है कि हुजूर की शान में आचार्य प्रमोद कृष्णन ये बात पढ़ रहे हैं और किसी ने और ने लिखी तब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे दिल की आवाज है कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। आखिरी में सीधे के जा रहा हूं कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। परमात्मा महान है, ईश्वर महान है, अल्लाह महान है, हम सब उसकी संतानें हैं। मेरे दोस्तों, अपनी बात खत्म करता हूं।
तमाम प्रस्ताव जो जमीयत की तरफ से आए हैं और लाए जा रहे हैं, और आज राष्ट्रीय एकता सम्मेलन नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस में जितने लोग आप शामिल हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे सुना, मेरी इज्जत अफजाई की, मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। हमारे संभल के इकबाल महमूद साहब और शाहिद मंजूर साहब यहाँ तशरीफ में, उनका नाम लेना भूल गया तो माफी चाहता हूं। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। खुदा हाफिज। ओम शांति शांति शांति। ये सजीव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की, जहां पर राष्ट्रीय एकता सम्मेलन चल रहा है। और इस सम्मेलन में अभी आप भाषण सुन रहे थे जिसमें कहा गया कि धर्म पीछे है, पहले इंसानियत है, मजहब बाद में, पहले मोहब्बत है। इस तरीके की सभी धर्मों को एक करने वाली ये स्पीच अभी आप सुन रहे थे। इस सजीव प्रसारण हम आपको दिखा रहे थे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जहां पर चल रहा है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन चल रहा है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां पर सभी धर्मों की एकता पर बल दिया जा रहा है। और यहां पर अभी आपने भाषण भी सुना, ये सजीव भाषण चल रहा था, आप तक पहुंच रहा था। इंसानियत पहले है, धर्म बाद में है, मोहब्बत पहले है, मजहब बाद में है, इस तरीके की तमाम बातें कही गई। और यहां पर गुलाम नबी आज़ाद भी नजर आए, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, और तमाम धर्मों के लोग यहां पर नजर आए और सभी धर्मों की एकता पर बल देते हुए यहां पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। और फ्रिज में क्या रखा है उसका हिसाब लेना शुरू हुआ और इखलास साहब का कत्ल हुआ। हुकूमत हिंद खामोश रही। आप देखें, जब पूरे मुल्क के तमाम अदीब, शायर, राइटर, साइंटिस्ट अवार्ड वापसी किए, उस वक्त कहा गया कि ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बनाया जा रहा है। हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे दस्तूर हिंद, हमारे संसदीय लोकतंत्र और हमारे आजादी का जो विरासत है, हमारा जो साझा कुर्बानी का जो शहादत है और उसके साथ साथ साझा विरासत है, उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जो हुकूमत पठानकोट में दहशतगर्द को रोक नहीं सकते, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट के ऊपर अपना पठानी दिखाने चले गए कि क्या वो कह रहे हैं, क्या नारा दे रहे हैं। ये संघ परिवार को आजादी से पहले भी, जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त भी ये आजादी शब्द से नफरत था और आज भी वो आजादी शब्द से उनको नफरत है। चाहे वो गुलामी से आजादी हो, चाहे वो भूखमरी से आजादी हो, चाहे वो तंग खास्ता हाली से आजादी हो, चाहे वो बेरोजगारी से आजादी हो। और यही कारण है कि न तो आजादी की लड़ाई में शिरकत किए थे और ना ही, मैं पार्लियामेंट भी कहा, जब मैं बंगाल से आता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए फौज तैयार किए तो वो फौज का नाम आजाद हिंद फौज रखे। इसका जो नारा था, इत्तेफाक, इत्तेमाद, कुर्बानी, फारसी से और उर्दू से आता है। हम जो नारा देते हैं, चाहे वो भगत सिंह इस ऐवान में गए, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्लियामेंट के बिल्डिंग में प्रतिशत दर्ज को लेकर के, चाहे हम किसान और मजदूर सड़क में गए, हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं, वो भी उर्दू जुबान और फारसी जुबान से आया है। और आज पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में ऐसा प्रोफाइलिंग किया जा रहा है कि हमारा लिबास, हमारा जुबान, हमारा तरीका इबादत, हमारा चेहरा देख करके कहा जाता है कि ये हमारे जैसा नहीं है, और जो उनके जैसा नहीं है वो देश प्रेमी नहीं है। कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का वो केस लगा दिए, उमर खालिद को, अनिर्बान को
और आज बीजेपी के लीडर बंगाल में कह रहे हैं, मैं जादवपुर विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूं, वहां जब ये जेएनयू के स्टूडेंट के टाउन में अक्ताइब में जब वहां सॉलिडेरिटी मीटिंग हुए तो कहते हैं कॉलर पकड़ के खींच के हम बाहर निकालेंगे। आज हिंदुस्तान के लोगों को यह तय करना पड़ेगा, जमहूरियत दुश्मन ताकत हमारा कॉलर पकड़ के वो हमें पीटेगा या पूरा हिंदुस्तान उनका गिरवा पकड़ के उनसे जवाब मांगेगा कि तुम थे कहां, इस मुल्क को जब आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रहे थे। 1857 के पहले आजादी की जंग से लेकर के आज तक इस मुल्क की आजादी को बहाल रखने के लिए हम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम के खानदान हमने खून बहाए हैं। तुम नाथूराम के खानदान आकर के हमसे तुम देश प्रेम का सर्टिफिकेट मांगोगे, ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। मुंह में राम नाम और दिल में नाथूराम, ये इस मुल्क में चलने वाला नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हमारे घर में क्या पक रहा है, हम मछली बना रहे हैं या गोश्त बना रहे हैं, वो बड़े का है या छोटे का है। हुकूमत का, सियासत का ये कोई मुदाखलत इसमें हो नहीं सकता। हमारे खुराक के बारे में, हमारे जुबान के बारे में, हमारे इबादत के तरीके के बारे में, हमारे यकीदा के बारे में, हमारे किताब के बारे में, ये हमारा जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। हुकूमत को चाहिए कि जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है, जिसके घर में राशन नहीं है, जो डेका, जो किसान गेहूं और चावल उगाता है, जब उसके घर में अनाज नहीं है, जब वो खुदकुशी करता है, तब ये हुकूमत कहां जाती है, तब उनका पठानी कहां जाता है। भाजपा हो या संघ परिवार हो या प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमारे घर में क्या पक रहा है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी के अंदर किसी का घर में अगर खाना नहीं पक रहा है तो क्यों नहीं पक रहा है, उसको 2 रुपए किलो चावल और गेहूं पहुंचाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हुकूमत को यह फैसला करना है। सवाल हमारे नौजवान को हाथ में काम मिलेगा या नहीं, हमारे किसान को फसल का, अनाज का कीमत मिलेगा या नहीं, सवाल हमारे मजदूरों को उनका रोटी और रोजी और बोनस का हक मिलेगा कि नहीं। वो उस सवाल से हटा करके वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कौन देशद्रोही है, ये हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मैं तो पार्लियामेंट में कहा, चूंकि विश्वविद्यालय का नाम ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम में है, जवाहरलाल नेहरू के नाम से उनको बहुत नफरत है। आजाद हिंदुस्तान को सेकुलर बनाए रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ देने के लिए, जमहूरी जो ताकत है उसको, बुनियाद को मजबूत करने के लिए, आजादी के पहले, आजादी के बाद जो लोग भी इस मुल्क को बनाने में अपना अपना देन दिए हैं, उससे संघ परिवार को बहुत नफरत है। और इसलिए उनको कम्युनिस्ट से भी नफरत है, उनको मुसलमानों से भी नफरत है, उनको क्रिश्चियन से भी नफरत है, और उनको जो भी इस देश के देश प्रेमी, जो भी इस देश के हुब्बुल वतन और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सबसे बड़ा मंच बनकर के उभर के आके लड़ा था, और जमीयतुल उलमा हिंद जैसे ताकत जो आजादी के लिए कुर्बानी दिए, उससे भी उनको नफरत है। हम इस नफरत के आग में हिंदुस्तान को जलाने नहीं देंगे। आज सवाल ये नहीं है कि हमारा मजहब, हमारा यकीदा, हमारा सियासी जमात कौन सा है। जब घर में आग लगता है, वो आग को बुझाने के लिए जब आप आवाज देते हैं, तो हम कब किससे झगड़ा हुआ था, किसका चचा हमसे क्या कहा था, दावत कौन दिया था या नहीं दिया था, चुनाव की लड़ाई में हम कौन किस रुख खड़े हुए थे, वो फैसला हम नहीं करते हैं। हमें सिर्फ देखना पड़ता है आग बुझाने के लिए कौन पानी लेकर आया है, और आग बढ़ाने के लिए कौन केरोसिन तेल का जरीकन डब्बा लेकर आया है। इस मुल्क में आमने सामने का लड़ाई है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासी जमात के लोग हों, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो सड़क में हो। आज देश प्रेम का नारा देने वाले से ये पूछते हैं, भारत माता की जय बोलकर चीखने से भारत का बड़ा नहीं होगा। भारत माता के संतान को
भूखे इंसान को खाना मिलेगा कि नहीं, उसका गारंटी से ठीक होगा कि भारत माता का जयकार होगा या नहीं होगा। भारत माता के नौजवान को नौकरी मिलेगा या नहीं, उससे तय होगा। तुम कहते हो हम चीखेंगे, चाहे जमुना के तट में हो, चाहे गंगा के किनारे हो, चाहे हम धर्म का इस्तेमाल करके हो, हम ये चीख करके बताएंगे कौन कितना देश प्रेमी है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात आपसे रुखसत होऊंगा। देश प्रेम का पहचान, मैं मोहम्मद सलीम आपसे कह रहा हूं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में इतने रियासत, इतने जुबान, इतने धर्म, इतने कायद के लोग हैं। इस जमहूरी सेकुलर मुल्क में देश प्रेम का यार्डस्टिक पहचानने का तरीका एक है। कौन इस मुल्क में अलग अलग मजहब जुबान के लोगों को एक साथ रखना चाहते हैं और कौन तोड़ना चाहता है। जो इस देश प्रेम करेगा, इस देश से वो लोगों को जोड़ेगा, लोगों की एकता को कभी नहीं तोड़ेगा। और जो लोगों की एकता को तोड़ने वाला है वो कभी देश से मोहब्बत प्यार नहीं कर सकता। ये उसका पहचान है। गुलाम नबी आजाद साहब जो इस वक्त राज्यसभा में अपोजिशन लीडर हैं, और सोनिया जी को हमने दावत दी थी मगर उनकी तबीयत भी कुछ खराब है, इसलिए उन्होंने अपना पैगाम भेजा है जिसको लेकर आए हैं। मैं उस पैगाम को बड़ी अहमियत इसलिए भी देता हूँ कि उन्होंने उर्दू में दस्तखत अपने हाथों से करके दिए हैं। मैं तो रहमत देता हूँ, तशरीफ लेकर आए। आज की इस तारीखी कौमी यकजहती का एहतमाम जिस जज्बे के साथ, जोश के साथ जमीयतुल उलमाए हिंद के रूह अवा और सदर जनाब मौलाना अशरफ मदनी जी कर रहे हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उन्हें सलाम भी करता हूं। और उसके साथ यहां मौजूद मुल्क भर के उलमा हजरात और बहुत सारे मजहबी इदारों को चलाने वाले और सदुओ साहिबान और दूर दूर से आए हुए हजारों की तादाद में मेरे भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि आपने दावत कांग्रेस की सदर श्रीमती सोनिया गांधी को इस कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंस में आने की दी थी, लेकिन वो नहीं आ पाई। लेकिन उनका पैगाम उर्दू में और अपने दस्तखत नीचे करके उन्होंने भेजा है। मुझे निहायती मसरत होगी कि मैं उस पैगाम को, उनके जज्बात को, उनके एहसासात को, और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आप और हम सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी शिद्दत से सोनिया गांधी जी भी सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रही हैं
पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। अब मैं सोनिया गांधी जी का पैगाम पढ़ता हूं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि जमीयतुल उलमाए हिंद 12 मार्च 2016 को दिल्ली में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस कर रही। मुल्क के मौजूदा हालात के मद्देनजर ये एक अच्छा और कारगर कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। फिरका वाराना ताकतें एक गहरी साजिश के तहत मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ रही हैं और मुल्क में नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं। देश के सेकुलरिज्म को खासकर निशाना बनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए गहरी फिक्र की बात है। ऐसे माहौल में सभी देशवासियों को मजहब, जात पात, रंग और नस्ल के भेदभाव को भूलकर कौमी यकजहती के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना एक अहम काम है। जमीयतुल उलमाए हिंद का किरदार कौमी यकजहती के लिए हमेशा सराहना के काबिल रहा है। एक आदमी शोर मचा, आवाज नहीं जा रही, आवाज पहुंचेगी आप। आवाज किस में नहीं आ रही है? जरा ऊपर कर दीजिए जोर से। जमीयतुल उलमाए हिंद का किरदार कौमी यकजहती के लिए हमेशा सराहना के काबिल रहा है। देश की आजादी के लिए जमीयत ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर लड़ाई लड़ी। मुल्क के बंटवारे के वक्त गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जमीयत ने कौमी यकजहती के झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपना किरदार निभाया है। मौजूदा हालात में जमीयत ने फिर एक अहम कदम उठाया है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्क की सालमियत और एकता को मजबूत करने के लिए की जाने वाली इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दुआ करती हूं और उम्मीद करती हूं कि जमीयत की इस कोशिश, जमीयत की ये कोशिश अच्छे नतीजे लाएगी। शुक्रिया सोनिया गांधी। मैं नीचे रखता हूं। हजरात, मैंने और मुझे शर्फ हासिल हुआ है इस तंजीम के इससे पहले रुए रवा हजरत मौलाना असद मदनी के साथ मुल्क में कई जगह कॉन्फ्रेंसें अटेंड करने का और कई दफा मुल्क में सियासी पार्टियों में शमूलियत करने का फख्र भी हासिल हुआ। और शायद उनकी जो आखिरी पब्लिक मीटिंग सियासी में हुई उत्तर प्रदेश में बहुत अलील थे, लेकिन मैंने बहुत इसरार किया और उस इसरार के बावजूद भी मेरे साथ वो हेलीकॉप्टर में आए और वापस हेलीकॉप्टर में मैंने पब्लिक मीटिंग के बाद उन्हें घर छोड़ा। और वो शायद उनकी आखिरी सियासी तकरीर थी। लेकिन आज मुझे बहुत ही मसर्रत, जिस जोश और जज्बे के साथ उन्होंने पिछले कुछ आजादी के बाद बरसों में इस तंजीम को खड़ा किया, उसी तंजीम को आज मौलाना अरशद मदनी साहब उसी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। हजरात, इस तंजीम की शायद 2 दफा बहुत जरूरत
मुल्क को महसूस हुई। एक तो आजादी के दौरान और दूसरा आज के इस दौर में। आजादी के दौरान 1857 से लेकर, जैसे आचार्य प्रमोद जी बता रहे थे कि आज का इतिहास नहीं है, आज की तारीख नहीं है। जो लोग अपनी तारीख के सिवा दूसरों की तारीख नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए वो इतना बोलते हैं कि उन्हें कुछ मुल्क की आजादी के बारे में 1857 से लेकर और आज तक कुछ में जानकारी नहीं, इसलिए बोलते हैं। उस वक्त भी जो हिंदुस्तान की पहली आजादी की जंग मानी जाती है, उस वक्त की हजारों की तादाद में इस मुल्क के कई मौलाना और उल्मा शहीद हुए हैं हिंदुस्तान की आजादी के लिए। शायद किसी एक मजहब के लोग तो ज्यादा मरे होंगे, लेकिन उलमा लोग किसी तंजीम के या किसी तबके या किसी मजहब के इतने नहीं मारे गए हैं जितनी 1857 के बाद से मारे गए हिंदुस्तान की आजादी के। और 1919 से लेकर आज 1947 तक जो जमीयत उलमाए हिंद का किरदार रहा है, उसे हिंदुस्तान की तारीख कभी भूल नहीं सकती। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ छोटी मोटी सियासी पार्टियां कांग्रेस की सरबराही में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद वोट की राजनीति नहीं, एक हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इसने जन्म लिया और लड़ाई लड़ती रही उस नॉन वायलेंस की तरह जिसका गांधी जी ने कहा था। ये तो 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो तब जमीयत उलमाए हिंद ने अपने कौम और लोगों के लिए जब आजादी का एक फरीजा अंजाम देने के बाद अब ये दूसरा फरीजा अंजाम दे रहे हैं कि इस आजाद हिंदुस्तान में जो जगह है अकलियत की मुसलमानों की, वो जगह, वो हुकूक उनको दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मैं मुबारकबाद देता हूं उस तंजीम कि उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने का फरीजा भी अंजाम दिया और इस मुल्क में अकलियत बिलखुसूस मुसलमानों को अपनी जगह पे पांव रखने के लिए भी दिन रात कोशिश में और काम कर रहे हैं। भाइयों, आज जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और आज की इस जमीयत उलमाए हिंद की तारीखी कॉन्फ्रेंस के स्टेज से मैं आपको मुबारकबाद देता ही हूं, लेकिन हिंदुस्तान के उन हिंदू भाइयों को जो चाहे जज हो या रिटायर्ड जज हो, चाहे वो पत्रकार हो, लिखने वाले हिंदी अंग्रेजी या उर्दू, चाहे वो कुछ चंद टेलीविजन में चंद अल्फाज लगा रहा हूं, चंद टेलीविजन के एडिटर्स हो जिनको निकाला जाता है सरकार की तरफ से एक चैनल से दूसरे चैनल पर, क्योंकि वो सेकुलर क्यों है और सेकुलरिज्म की बात क्यों करते हैं। मैं उन एंकर्स को बधाई देता हूं जो इस सरकार के होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ते हैं और
नौकरी से बर्खास्त होना मंजूर करते हैं, लेकिन अपने रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं उन हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं, मैं उन हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं। इखलाक के बाद जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए, चाहे जाती तौर पर आपको और हमें उनसे बात करने का अगर मौका न मिला हो, तो लेकिन ये स्टेज से, कौमी यकजहती के स्टेज से शायद और कोई स्टेज मंच नहीं हो सकता है कि उस काम के लिए जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसकी हम सराहना न करें तो शायद हम इंसाफ नहीं कर सकते हैं। वो भी एक तरह की कुर्बानी दे रहे हैं। नबी की उम्मत होने के नाते हम उनकी बर्बादी की दुआ नहीं करते हैं, बल्कि यही दुआ करते हैं कि उनके दिलों से ये नफरत की आग बुझ जाए, ताकि हम प्यार और प्रेम की जिंदगी बसर इस मुल्क में करेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम। हज़रात, आपको पता है कि इस प्रोग्राम का इनेकाद जमीयत उलमा की तरफ से हो रहा है। इस जलसे के सदर, जमीयत उलमा के सदर का सदारती कलीदी खिताब होगा। मैं हजरत से गुजारिश करता हूं कि हजरत आपकी तरफ सिर्फ इन्हीं की निगाहें नहीं हैं, बल्कि आपकी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं। मुल्क की सालिमियत और बका के सिलसिले में आपने पैगाम मोहब्बत आम करने के लिए जो अहद किया है, उस अहद पैमान को सामने लाते हुए सारी दुनिया की आरजुओं का, सारी दुनिया की निगाहों का मरकज आप है और आप ही का ये पैगाम है। आपने दीवानगी को एक नई जिला बख्शी है। जिसे दीवानगी कहते हैं उल्फत की अजब है, जिसे दीवानगी कहते हैं उल्फत की अजब है। गनीमत है जो सदियों में कोई दीवाना हो जाए। उसी दीवानगी की फहरिस्त में आपका नाम है, जिसके मतवाले और जिसके दीवाने शेखुल हिंद थे, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह थे और हमारे तमाम अकाबिर थे। आप तशरीफ लाइए, मसनद सदारत खाली है और आप उस पर बैठकर उस मसनद को इज्जत अता फरमाए और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे कि देखो, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलफिदा माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलफिदा माली। समझ मत, सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। अगर मंदिर रहेगी तो मस्जिद रहेगी, मस्जिद रहेगी तो मस्जिद रहेगी, मंदिर रहेगी, मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा रहेगा। हिंदुस्तान में सब लोग अमन अमान के साथ रहे। ये नहीं हो सकता कि हम हिंदुस्तान को गाना कर दे। अगर मुसलमानों पर गिरा दोगे तो मुल्क गाना हो जाएगा, मुल्क अल्लाह हो जाएगा, मुल्क एक दौर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने अभी संबोधित किया और जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी आप कुछ बोल रहे हैं और देश में जो मौजूद इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हालात पर चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है, अपनी बात रखी जा रही है और किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी राजनीति से इनका विरोध नहीं है, बल्कि ये एकता का संदेश देना चाहते हैं। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जिसको आयोजित किया जा रहा है जमीयत उलेमा की तरफ से और उसके अध्यक्ष अरशद मदनी अब कुछ बोलेंगे और संबोधित करेंगे वो। तो इस मौके पर इससे पहले सांसद सलीम ने भी संबोधित किया और मौजूदा हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो लोग नफरत फैलाने की, नफरत फैला के राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जा रही है, उन कमियों को दूर करना है। हमें पैगाम देना है एकता का और मिलकर ही सबका साथ, सबका विकास तभी होगा, सबका विकास तभी होगा जब सबका साथ होगा। उन्होंने कहा कि
हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। इस तरीके के गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा। और अब जमीयत उलमा के अध्यक्ष अरशद मदनी संबोधित करेंगे। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مختلف پارٹیوں اور مختلف تنظیم اور مختلف مذاہب کے معزز اور محترم حضرات اور اسی طرح جمعیت علماء ہند کی دعوت پر ملک کی موجودہ صورتحال کی اپنے دل میں خواہش رکھتے ہوئے اتنا بڑا جمع اپیل جس کو آج تک اس سے پہلے اس حال کی در و دیوار نے کبھی نہ دیکھا ہوگا. میں ان تمام حضرات کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ملک کی موجودہ صورتحال میں جمعیت علماء ہند نے اس گھٹن کو محسوس کر کے آج آپ لوگوں کو دعوت دی ہے تاکہ ہم اپنی آواز کو ملک کے گوشے گوشے میں اور اقلیت اور اکثریت کے ہر گھر تک پہنچا سکیں تاکہ ہمارا یہ ملک اپنی قدیم روایات اور گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ امن و امان اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندہ رہ سکے. آپ نے ہماری اس دعوت کو قدر کی نظر سے دیکھا اور آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں، ملک کی موجودہ صورتحال جمعیت علماء ہند ہی نہیں، مختلف ملک کی اقلیتیں اور وہ سیاسی پارٹیاں جو سیکولرزم کو بنیاد بنا کر اپنا قدم بڑھاتی ہیں، جیتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، وہ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ اس ماحول کے اندر جو حکم ہے وہ ملک کو بربادی کی طرف لے کر چلنے والی ہے. ملک کے اندر سلامتی، امن و شانتی کو ختم کرنے والی ہے. آج ملک کی صورتحال کیا ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ ملک کی آزادی سے پہلے یا ملک کی آزادی کے بعد 65-70 سال کے اندر ملک کی وہ صورتحال نہیں تھی. فرقہ پرستی
का वो नंगा नाच नहीं था जो आज है, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं था। मुंतशिर खुद नहीं बल्कि लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये हकीकत है कि जिस तरीके से हमने इतिहाद की सदा कायम करके आज़ादी हासिल की, आज वो ताकतें, वो अनासिर कि जो आज हिंदुस्तान के लोगों को मुतज़िर करके अपने अवराध को पूरा करना चाहते हैं, हम अगर मुतहिद होकर के इस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनको कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस वक्त हम तमाम ही लोग जो मुल्क की बहरानी कैफियत और नाजुक तरीन दौर से आपका मुल्क गुजर रहा है, इसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुनारा करें और आने वाले तूफान के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार रखें। दूसरी हकीकत ये है कि मुसलमान और दूसरे लोगों के तीव्र ख्याल में खास फर्क है। यहाँ बाद लोग अपने बारे में कहते हैं वतन परस्त हैं, मुसलमान ये कहता है कि हम महबूब वतन हैं, हम खुदा के परस्तार हैं, खुदा ही की बंदगी करना चाहते हैं और इस यकीन के साथ जुर्म जाति, नाइंसाफी, जबर इस्तेमाल के सिलसिले को इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमसे ये पूछा जाएगा। जो क़यामत के मुनकिर हैं, जिनको है क़यामत का कोई तसव्वुर नहीं है, वो इसी दुनिया में घूम फिर करके अपने सही जगत को मुस्तकिल कर लेते हैं, लेकिन हमें तो आखिरत पर यकीन है। हमें इस बात का अंदेशा है कि अगर इन फितनों का सफेदार नहीं करेंगे और इन फितनों के सैराब को रोकने के लिए तदबीर नहीं इख्तियार करेंगे तो हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे और खुदा के सामने हम क्या जवाब देंगे। इसलिए आपका मसले तो आसान है, लेकिन हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे इस जिम्मेदारी को आप चयन न करें। तीसरी हकीकत ये है, मुल्क में आज गरीबी है, अदम इस्तेहकाम है, यहाँ दलितों के साथ, अक़लियतों के साथ मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां लगी हुई हैं, औरतें गैर महफूज हैं, कानूनी इदारों का जो व्यवहार होना चाहिए वो आज महफूज नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि आज ये कुछ इस मुल्क में हो रहा है तो मुसलमान इसे ठंडे पेट में बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि इसके दबाव के लिए, इसको बेकार डालने के लिए वो जदोजहद करेगा और ऐसे अमन पसंद और ऐसे मुहिब वतन लोगों को आवाज दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि जो इस किस्म की नामुनासिब किस्म की कैफियतें आज पैदा की जा रही हैं और हम और तुम मिल करके जिस तरीके से माजी में हमने कामयाबी हासिल की है, हम आज अगर उस कामयाबी के नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर हमें कामयाबी नहीं नसीब होगी और यह मुल्क इंतहाई परेशानियों से दो चार हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही धर्म के लोग परेशान नहीं होंगे, बल्कि मुख्तलिफ तहजीब और मवाद के लोग इस परेशानी से दो चार होंगे। इस बिना पर हमें दूसरे लोगों के सामने जहाँ हमने शांति का पैगाम जो इस्लाम ने दिया है उसे भी पेश करना है, भी पेश करना है, कैसे भी दिखाना और लोगों को ये बताना है कि हम इसके अमलदार हैं और इस काम के लिए हम इसलिए आमादा और तैयार हैं ताकि हम खुदा के सामने जवाबदेही के लिए जब पेश किए जाए तो हम ऐसा जवाब दे सकेंगे जिसके नतीजे में हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए। इसलिए हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी और तमाम ही तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मिलजुल करके मुल्क की इस बहरानी कैफियत को रोकने और इसी तरीके से उसको सही रास्ते पर लगाने के लिए कोशिश करनी होगी। और अब मैं जनाब डॉक्टर नवीद हामिद साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर हैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और 2-3 मिनट में अपनी बात को पूरा फरमाएं। जमतुल के सदर हम सब के रहनुमा वहाँ सगीरा सैयद मदनी साहब का बताता हूँ।
मुल्क के गोशे गोशे से आए मुख्तलिफ मज़ाहिब के और हिंदुस्तानी को मुत्तहिद रखने के जज्बे के साथ इस अज़ीमुश्शान कन्वेंशन में तशरीफ लाए तमाम हाज़रीन, आदाब और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरे यहाँ पर जानते होंगे तो क्रिकेट में दावा खिलाड़ी होता है। अब जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो अपने आप को डायरेक्ट मेरे क्रिकेट में अपने आप को पेश कर रहा। मुझे मालूम है क्रिकेट की कितनी कीमत है, मुझे मालूम है कि तमाम तर बातें आपके सामने आ चुकी। बड़े भाई मैंने मदरी साहब ने क्या कहा था, खूब कहा था कि झूठ का मुसलमान बाई चौक मुसलमान क्या खूब कहा। उसी जुमले के आगे एक जुमला माहौल लगाया जाता है। हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान में फासिज्म का झंडा बुलंद किए हुए हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि मौजूदा हिंदुस्तान की जो हैसियत है वो हैसियत इस वजह से भी है कि जनरल माताजी के वादी के अंदर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए आवाज बुलंद किया था। वरना हिंदुस्तान का नक्शा दूसरा होगा। अगर आज हिंदुस्तान का नक्शा जिसमें हम मौजूद है ये है तो ये जनरल माही की खेल है, इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हिंदुस्तानियों को तहरीर दे रहे थे कि अंग्रेजी फौज में शामिल हो, इसलिए आप हमें खोपड़ी रखी था, आप हमें पैगामियां दीजिए, हमें तौबा सिखाइए। यह जनता थी, इसके कारीन में उन्होंने खूब कहा और बहुत अच्छा कहा और याद दिलाया इस मुल्क के लोगों को और आपके जरिए इस मुल्क को कि जनता ने मुत्तहिदा कौमियत का जो तस्वीर पेश किया था उसमें अपने क्या कुर्बानियां दी है। ये याद रखिए कि 1919 से पहले आप जरा निकाल दीजिए खिलाफत मूवमेंट को सही आजादी से तो कांग्रेस पार्टी क्या थी, इस तरह पार्टी ऑफ पोजिशन, इस तरह यह आपने खूब कहा और खूब याद दिलाया और इसको बार बार याद दिलाने की जरूरत है। अरे मदारिस के अंदर तिरंगा झंडा फहराने की बात करने वालों पैसे बात लग गए सब खातों का पैसे में सुनना चाहिए तुमको याद करो और बनाइए कि तुम्हारा नई पीस है उसके अंदर 1947 में 14 अगस्त को तुमने क्या लिखा था, तुमने लिखा था कि तिरंगा हमें कबूल नहीं है, तुमने लिखा था कि तिरंगे में 3 रंग है और तुमने लिखा था कि 3 का हिस्सा महमूद होता है, इसलिए आज तक तुम तिरंगे को कबूल नहीं करते और मदारिस पहले दिन से अपने हाथ तिरंगे लगा रहे हैं। इससे बचे और क्या होगा ये बताओ। आखिरी बात ये भाई सफीदम बदाम कहीं नहीं है, ये भाई फासिज्म के खिलाफ है। और याद रखे हिंदुस्तानी कि इतनी जगह फासिज्म की आवाज उठी थी और जर्मनी में फासिज्म की आवाज उठी थी। यूरोप के अंदर क्या होता हुआ था, ये फासीवादी तो खेल वालों को बदनाम करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को किस नाम में लेना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान के आवाम के सामने हमें सवाल पेश करना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ शुक्रगुजार हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के तमाम मुस्लिम समाज जमातों का विभाग है, वो आपके साथ नहीं आपके पीछे चलेगी और हिंदुस्तान को मुत्तहिदा हिंदुस्तान को बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने हमेशा उनके हर कार्यक्रम में हर प्रोग्राम में कोशिश की। आखिर में जरूरत हो गई इस कौमी एकता, इस इंटीग्रेशन प्रोग्राम की जरूरत हो गई। ये देश के जब से आजाद हुआ, ये गंगा जमनी तहजीब में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम ईद से हमारे बात देने जाते थे, वो हमारे यहाँ मजदूरों को दिखाई खाना आते थे। ये माहौल को किसने खराब किया? क्योंकि देश में जो ताजा हुकूमत बनी है, अभी केंद्र की बनी सरकार, अभी तक जो सरकारें चुनी जाती थी वो बाबा साहब के अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर चलती थी, लेकिन इस सरकार को बाद में चले हुए संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कौन राज करेगा इस देश पे, भाजपा करे, कांग्रेस करे, अन्य पार्टियां करें। हमारा कहना है कि जो संविधान इस देश में लिखा गया था उसके अनुसार ये सरकार चलेगी, उसके साथ देश चलेगा। वो संविधान क्या कहता है कि उसमें खास तौर से अक़लियत के लिए एक खास इंतजाम किए गए हैं संविधान में। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उनको इनके जो शिक्षा के आए हैं उनको विशेष संरक्षण प्राप्त किया जाएगा, खास दर्जा दिया जाएगा। इनको अपनी इबादत करने की, अपने धार्मिक, अपनी जो भी रस्में हैं उनको पूरी करने की हर तरफ से छूट होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, अरे किसी खाने के ऊपर तक कर दिया जाता है कि ये ईद क्यों खा लिया, वो ईद क्यों खा लिया। कहीं खाने में पाबंदी तो कहीं बोलने में पाबंदी। अभी एक वो मोहल्ला को मार दिया, ईसाइयों के ऊपर पूरे बोल रहे हैं और सबसे पहला निशाना मुसलमान है। लेकिन मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पैगाम बिल्कुल नहीं देना चाहता हूं कि उनका निशाना अभी जरूर मुस्लिम है, लेकिन उनका इरादा पूरी अक़लियत को निष्प्रभावित करने का है। कोई इसका बच्चा भी बिल्कुल महसूस है, एक इम्तिहान है, अल्लाह इस इम्तिहान में कामयाब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन इला यौमिल दीन। हज़रत मौलाना अशरफ जल्दी साहब दावत बरकात हूँ, सदर जमअत हिंद, स्टेज पर तशरीफ फरमा बुजुर्गों, असाबिर मिल्लत, मुख्तलिफ तबका मज़ाहिब के नुमाइंदा, तहजीबों के नुमाइंदे, उनके जिम्मेदारान, बुजुर्गों, भाइयों और अजीज नौजवान साथी, आज जिस मौके पर जमअत हिंद ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, ये इंतहाई अहम और नाजुक मौका है। मुल्क में अदम रवादारी, नफरत, अदम एतमाद और फ़िरक़ापरस्ती की आंधियाँ चल रही हैं। हमने आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी उसमें हमारे बुजुर्गों का, जो मुसलमान का और हमारे उलमा का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमें मैं कहना चाहता हूँ, 68 साल बाद इस मुल्क में फिर से आज़ादी की आवाज़ें उठ रही। हमारी विश्वविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटीज में हमारी नौजवानों को महसूस करती है कि 68 साल बाद भी इस मुल्क के लोगों को हकीकी आज़ादी नहीं मिली। आज भी इस मुल्क के आदिवासी परेशान है, एक बहुवाद के नाम पर मारा जा रहा है। आज मुल्क, आज इस मुल्क का मुसलमान परेशान है, उस पर आतंकवाद का लेबल लगाया जा रहा है। आज इस मुल्क के दलित परेशान है, आज इस मुल्क के किसान खुदकशी कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क की आदमी आबादी, जिसको हम ख़वातीन कहते हैं, महिलाएं कहते हैं, वो परेशान है, परेशान हाल है। एक यत्न के सब 68 साल की हम की हिफाजत नहीं करते। आपको ये सुनकर हैरत होगी
इंडियन क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि हर 15 मिनट में आजाद हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में हर 15 मिनट में एक औरत की असमत जन्म होती है, उसका बलात्कार किया जाता है। हजरत आज इसमें से गलत आवाज है, वो खड़े उम्मत कहाँ है जिसने इस मुल्क को आजादी दिलाई? आज इसमें जो अनिवासी आवाज दे रहे हैं, कहाँ है वो खड़े नाम कलम तो आए सामने? आज इसकी खवातीन आवाज दे रही है कि हमारी असमत और सत्य की जो पामानी हो रही है उसके रखवाले कहाँ है, उसके हाफिज कहाँ है, कहाँ सुन्नत को रहे जो ये कहते थे एक औरत के नाते हिंदू वहां तक दोनों जाती जाएगी तो उसके जमीनी राबे दिखता है। आज इसमें क्या खवातीन उन लोगों को इंतजार कर रही है कि एक औरत अगर कन्या कुमारी से कश्मीर तक पैदल चली जाए तो उसको सिलसिले न लगा सके, एक और उम्मत को आवाज दी जा रही है। आज हकीकी आजादी के लिए, आज इस मुल्क में पूरी रात की आजादी के लिए, आज इस मुल्क में आतंकवाद की आजादी के लिए, आज इस मुल्क में खौफ की आजादी के लिए, आज इस मुल्क में भुखमरी की आजादी के लिए आवाजें उठे हुए। आइए इस मुल्क को हकीकी आजादी को बरकरार करने के लिए हम और आप मिलकर कंधे से कंधा मिलाए और इस मुल्क को वाकई हकीकी आजादी बरकरार करें। वो आपको जवान मिला को मिला। मैं जनाब पादरी जितेंद्र सिंह साहब जो कानपुर से आए हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, लेकिन 10-4 मिनट में अपनी बात करूँगा। तो राष्ट्रीय एकता सम्मेलन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में ये चल रहा है, जहां पे जमीयत उलेमा-ए हिंद की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों हमारे साथ से ईसाई समाज के साथ एक घटना हुई, मुझे पकड़ कर ले जाया गया। कई लोगों ने जो अपने आप को देश के रहनुमा बताते हुए कैसी पार्टी के लोग मिट्टी का तेल लिए हुए थे और एक नारा लगाए हुए थे, इनको यही जलाएंगे, एक और उड़ीसा बनाएंगे। अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं जो ठीक समय पर उसने हमारी मदद की और हमें उस बड़े जुल्म से उसने बचा लिया। कुछ विशेष पार्टी के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक पर एक ही मकसद है, जुल्म ढाओ, किसी भी रीति से जुल्म ढाओ और उनके नामों निशान को मिटा दो। लेकिन हम मिटने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जहां पर मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग, जहां पर आप लोग एकता के साथ यहां पर दिल्ली शहर में आ गए हैं, तो निश्चित ही ये कारवां बढ़ता चला जाएगा और हम हर एक जुर्म से ढाने वाले को आप तोड़ते हुए एकता के साथ, प्रेम के साथ पूरी तहस नहस कर सकेंगे। ये एकता और ये प्रेम केवल यहीं तक नहीं, परंतु आगे जब तक जुल्म सितम करने वाले, जब तक उनके मंसूबे नष्ट न कर दिए जाए, जब तक उनके मंसूबे बदल न जाए, तब तक हम इस काम को करते रहेंगे, भले ये मंच हमें पूरे देश में जा जाकर लगानी पड़ेगी। ये हम इस देश के किराएदार नहीं है, ये देश हमारा है। हमने इसके लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, आप सब ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये कहते हैं हमसे वोट देने का अधिकार छीन लेंगे, ये कहते हैं हमारे क्रिश्चियन समाज के क्रिश्चियन स्कूलों में उन मूर्तियों को स्थापित करेंगे, गीता को पढ़ेंगे। हम क्यों, क्या हम अपने चर्चों में गीता और रामायण का उपदेश देंगे? एक सिलसिला व्यक्ति आता है, उससे कहता है कि आप अपने चर्च के अंदर बाइबल का संदेश देते हैं। मैंने कहा अगर हम अपने चर्च के अंदर बाइबल का नहीं तो क्या रामायण का संदेश देंगे? क्या इस देश में हमें धार्मिक स्वतंत्रता की भीख मांगनी पड़ेगी? आप कौन होते हैं? क्या हम आपसे देशभक्ति का या अपने देशभक्त होने का आपसे प्रमाण पत्र आपसे मांगेंगे? नहीं। अगर देखा जाए तो इतिहास गवाह है, मुसलमान
सिख, ईसाई सबने देश में अपने खून बहाया है। अब हम अपने ऊपर जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। वक्त केवल 2 या 3 मिनट का था, इसलिए सिर्फ मैं अपनी बात कि चाहे वो ईसाई समाज के पूरे देश के लोग क्यों ना हो, चर्च के पासवान पादरी लोग या क्रिश्चियन मिशन के लोग या नर्स फादर, ये मदनी जी से हमारा कमिटमेंट है कि पूरी रीति से ईसाई समाज इस मुहिम में आपके साथ सम्मिलित है। हम कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में अमन और चैन कायम करने के लिए आपके साथ हर कदम साथ में। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस हाजिर होते हैं। आप देख रहे थे चैनल वन न्यूज।